Welcome to all of you in MBM classes. As already I told about all the three different methods of algebraically like substitution, cross multiplication, elimination, and one more like reducing the equation, how to simplify equation and how to reduce it to get the value of x and y of the given equations. Now the last method, that means different method, graphically method also remain to explain you. So in this video I will try to explain you graphically how to represent linear pair of equations. So you know very well about all the three conditions, that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 for unique solution, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 for no solution, and a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 for many infinitely solution. If you know very well about all these three conditions, then it is easy to understand the lines of pair of linear equation which you already going to draw in the graph paper. By the graph you can say the answer or you can represent the pair of linear equation. So here I am going to read first question of the exercise 3.1 of your NCERT book, and the question is, Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were there. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Then represent this situation algebraically and graphically. So I have to plot graphically. Already you know how to represent this algebraically. For graphically we should find out what are actually equations. So we need to form equations with the help of all these sentences of the given question. So here we should take about the present ages of Aftab and his daughter. And after that we will write the condition and then we will form equation. So here I am going to explain you about the equation. Here we have to write, first of all let me write exercise 3.1 question number 1. We have to write about the present age of Aftab and his daughter. So I will write in this way. Let present age of, I will just mark here as like Aftab and just a table like, okay, and here daughter. Got it? So present age of Aftab's be x years and daughter's y years. We have to take the present age of Aftab and daughter. After that 7 years ago. So I am writing here 7 years ago. It is easily understood that ago means we have to subtract it. So we have to subtract 7 from both the ages. So 7 years ago their ages would be x minus 7 and y minus 7. After that there is one condition, this one 3 years from now. 3 years from now means after 3 years. 3 years from now. From now means after. You have to write after means plus. So it should be x plus 3 and this will be y plus 3. So I have written here about the present age 7 years ago, after 3 years ago, and here also about his daughter. Then after that I will write according to first condition. According to first condition they said 7 years ago I was 7 times as old as you. That means Aftab was older than daughter. So we have to write equation as x minus 7 is equals to 7 times of this one. So y minus 7. 7 times of his daughter. हमेशा याद रखिएगा फादर उनके बड़े हैं, अगर आपने 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और बड़े हो जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी. तो या तो आप डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करो या फादर की एज में डिवाइड करो, सो दैट दे बिकम्स बैलेंस्ड इक्वेशन, तभी वो इक्वल आएंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो सकते. अब कंडीशन ये लिखिए, अब इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करके एक छोटी सी इक्वेशन बनाइए. सो इट शुड बी x minus 7, 7y minus 49. So we can write x is equals to 7y minus 49 plus 7 means minus 42. ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई.
अब इसमें हम y के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी और उन्हीं को हमें प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी बना लेते हैं, वैल्यूज हम बाद में निकालना सिखा देंगे। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आई शैल बी 3 टाइम्स, दे सेड, आई मतलब फादर उन्होंने बोला आफ्ताब ने, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 टाइम्स। तो अभी हमको क्या करना है, 3 years नाउ के लिए। तो x प्लस 3 था और डॉटर की एज y प्लस 3, तब भी फादर तो बड़े थे तो यहाँ पे उनका कितना टाइम्स था, 3 टाइम्स। तो फिर से डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे इसको फर्दर ओपन करके। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी +9 - 3 विल बी 6। तो इक्वेशन सेकेंड वाली आपके पास ये बन जाती है। अब आप डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करते जाइए, y की पुट करिए तो आपको x मिल जाएगा। अभी इसमें ये 3 का मल्टीपल है और यहाँ 7 का मल्टीपल है, तो या तो आप दोनों में 7 का मल्टीपल्स को पुट कर दीजिए या दोनों में 3 का मल्टीपल पुट करिए, जो आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऑलरेडी ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं मैं आपको एक आध दो वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ, बट आपने ऑलरेडी ये 9th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन जो x = 7y - 42 है उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज पुट करती हूँ और यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं जिससे कि अपन को कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो यहाँ लिखिएगा आप x, ये लिखिए y, ये इसके लिए है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब y 7y - 42 है तो क्यों ना हम सिर्फ y की वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करें तो x मिलता जाएगा, उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो y की वैल्यू 3 की मल्टीपल में मैं डाल देती हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं 0, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो वो -42 ही आएगा। फिर 3 पुट कर देते हैं अगर तो 7 3 = 21 एंड -42 करेंगे तो -21। ये दो माइनस के टर्म आ रहे हैं इसलिए मैं 6 पुट कर देती हूँ। तो 7 6 = 42 -42 वो 0 हो जाएगा और देन नेक्स्ट एक और डाल देते हैं 9। तो 9 7 = 63 -42 करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। ठीक है, ये दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव हो गए। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन जो है x = 3y + 6, अब इसके लिए भी मैं एक ब्लॉक बना लेती हूँ जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट तो होने ही चाहिए। अब सेम वैल्यूज यहाँ पे भी मैं 3 का मल्टीपल ही ले लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा या सेम देखते हैं प्लॉट करने के टाइम पे अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो लाइन एक्सटेंड करके पता चल जाएगी। तो y = 0 लिया तो x = 6, ये लिया 3 3 = 9 6 15, 6 3 = 18 and 6 24 और 9 3 = 27 + 6 is 33। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि वो किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम यहाँ पे ग्राफ में फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को या कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी x = 7y - 42, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं उसके 3 के मल्टीपल्स को ले रही हूँ, तो मैंने स्केल लिखा 1 यूनिट = 3 years। मतलब वो जो 10 डिविजन्स होती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ब्लॉक बनता है, उसको 3 years लिया। तो यहाँ पे ग्राफ में हम लोग शो करेंगे कि ये ओरिजिन है, मैंने इस तरफ एक्स एक्सिस लिए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ज्यादा नंबर मैंने पॉजिटिव साइड लिए, एक आध नंबर नेगेटिव साइड लिया। y के एक्सिस को मैंने यहाँ लिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है। अगर हमारे पास कुछ नेगेटिव भी आ रहा है और अगर पेज में जगह नहीं है तो पॉजिटिव वाले प्लॉट्स को पॉइंट को प्लॉट करके हम ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे उसको। अब एक्सटेंड करके पता चलेगा कि वो लाइन कहाँ कैसे मीट होती है। तो पहला वाला जो पॉइंट था मैं कॉपी में देखते हुए बता रही हूँ आपको कि x की वैल्यू -42 इन केस y = 0। तो मैंने y = 0 यहाँ लिया। उस टाइम पे x -42 है तो वो नहीं ले सकते, इसीलिए उसको मैंने अभी छोड़ दिया ऐसे। देन उसके बाद सेकेंड है y = 3। जब ये y = 3 था तो x = मेरे पास -21 आ रहा है, वो भी नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं समझ मतलब प्लॉट हो पाएगा, इसीलिए छोड़ देते हैं। सेकेंड थर्ड वाला पॉजिटिव है, उसको देख लेते हैं। x = 0 देन y = 6, x = 0 y = 6। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये 0 है और y = 6 था।
आफ्टर दैट x इक्वल टू 21 था तो y इक्वल टू 9 आया था। x इक्वल टू 21 ये है तो y इक्वल टू 9 आता है आपके पास ये पॉइंट। तो आपने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 21 एंड y इज इक्वल टू 9, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, बाकी पीछे के जो 2 पॉइंट्स थे वो नहीं हो पाएंगे, इनको आगे एक्सटेंड करके देख लेते हैं। ये मैंने पेंसिल से बिल्कुल लाइटली इसको ज्वाइन करा है। पहले सेकेंड वाले पॉइंट्स को भी प्लॉट करके ज्वाइन करके देखते हैं कि किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से पहला वाला कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 6 के केस में y 0 था। इट मीन्स यही एक कोऑर्डिनेट है। x इक्वल टू 6 था तो y इस केस में 0 है। ये कोऑर्डिनेट लिखा, ये एक हमारे पास पॉइंट है। सेकेंड था x इज इक्वल टू 15, दैट टाइम y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू 3 ये था। आपने एक और कोऑर्डिनेट को लिख दिया, ये पॉइंट है उसका। थर्ड वाला पॉइंट आपके पास आता है x इज इक्वल टू 24, दैट टाइम y इक्वल टू 6, तो आपको ये एक पॉइंट मिला। और आपने यहाँ लिखा 24 एंड 6। एक और है 9, x इक्वल टू 33 फॉर 9 इक्वल y इक्वल टू 9, तो ये 33 x इक्वल टू 33 था, y उस केस में 9 था। इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपने लिखा 33 एंड 9। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ आता है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इसको मैं छोटा सा एक सर्कल बनाती हूँ। ये तो सिर्फ दोनों लाइंस दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस फ्रॉम द क्वेश्चन, कि ये सिर्फ रिप्रेजेंट हो रही है। क्या रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। और अगर यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप अगर ध्यान से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देख लेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो सिर्फ अगर रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं तो आप इतना ग्राफ करके छोड़ते हैं, एंड अगर वो मांगते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, दैट इट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन यू हैव टू चेक व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। सो आई एम गोइंग टू शो व्हाट इज एक्स हियर। उसके लिए हम लोगों को यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हुए देखो कि वो कहाँ इंटरसेक्ट होता है। सिमिलरली इट इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस ऑल्सो। तो ये आप डॉटेड लाइन से मार्क करके चेक कर लीजिए कि वो पॉइंट आपको क्या वैल्यू के साथ मिलते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मिल रहा है पॉइंट, दिस वाज 33, सो दिस इज 36, 39 एंड दिस विल बी 42। आई विल राइट हियर 36, 39, 42। सिमिलरली हियर इट वाज 0, 3, 6, 9, 12। तो x के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 42 एंड y इज 12। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिले 42 एंड 12, मतलब वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस इज 42। तो यू विल राइट x इक्वल टू 42 ईयर्स, ये फादर की एज थी, एंड y इक्वल टू 12 ईयर्स, दिस वाज डॉटर्स एज। तो ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी मेथड को ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। और ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये उनका रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशंस का, कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इट मीन्स कंसिस्टेंट है ये दोनों। ये दोनों इक्वेशंस के एंड पे, किसी भी एक एंड पे आपको इक्वेशंस भी लिख के दिखानी है, सो दैट इट इज इजीली क्लियर टू अस कि ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो नीचे वाली लाइन जा रही थी ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी x इक्वल टू 7y माइनस 42, और जो सेकेंड वाली थी वो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस ही हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंडर आता है। अगर आप ये सब छोड़ देते हैं तो हो सकता है एग्जाम में आपको इसके मार्क्स ना मिले। इसीलिए जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इक्वेशन लिखिए, लाइन को रिप्रेजेंट करने के टाइम पे एरो हेड्स भी डाल दीजिए, और प्रॉपर तरीके से स्केल वगैरह लिख के आप पूरा करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 2 more balls of same kind for rupees 1300. It was written as 3, but actually it is 2. That's why I put here circle and I have written 2 here. So represent this situation algebraically and geometrically. So again I am going to show about
this question with the geometrically, not algebraically. Okay, so once again we need to write here what is the cost of one cricket bat and what is cost of one cricket ball. So we are going to suppose as x and y, we need to make two equations and then we have to plot it. तो यहाँ पे बैट के लिए वी आर गोइंग टू सपोज एज रुपीज एक्स फॉर वन बैट एंड रुपीज वाई फॉर वन बॉल, एंड लेट मी राइट द इक्वेशन बिफोर दैट, before the graphical representation. So question number 2, exercise number 3.1. So we have to write here, let cost of one bat is equals to rupees x and cost of one ball is equals to rupees y. So I will write directly that according to question they are asking about 3 bats and 6 balls. So 3x plus 6y, the total cost was 3900. So this is equation number 1. और अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो x3 कॉमन निकाल लीजिए और ये और छोटी हो जाएगी इक्वेशन, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी x plus 2y equal to 3900 upon 3, that is x plus 2y equal to 1300. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है. Similarly, second condition, later she buys another bat and 2 more balls. So, also we have to write bat plus 2 more balls is equals to 1300 because उन दोनों का प्राइस मिला के टोटल 1300 हो रहा था, 1 bat and 2 balls का. तो ये इक्वेशन आपके पास सेकेंड वाली फिर से सेम आ गई. आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट वाली आपने जब कॉमन निकाला 3 तो आपको x प्लस 2y इक्वल टू 3900 अपॉन 3, दैट मीन्स x प्लस 2y इक्वल टू 1300 आया. एंड लकीली हमको हमारे पास सेकंड x प्लस 2y इक्वल टू 1300 वो भी आ गया. तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो प्लॉट करने से पहले ही हमें ये पता चल गया कि जब दोनों सेम है तो हमारे पास किस टाइप से इक्वेशन बनेगी. तो सबसे पहले मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको प्लॉट करके सिखाती हूँ. सी, जब ये इस टाइप की इक्वेशन हो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, मतलब ये 2y को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया. अब ये इतने बड़े नंबर में से इफ यू आर गोइंग टू टेक एज y इक्वल टू 1 2 3 4, so you will get very greater or the big value and it is very difficult to plot in the graph paper. So whenever you have such type of number, take the numbers as 100 200 300, that means बड़े बड़े नंबर ले लीजिए, छोटे छोटे नहीं ले बिकॉज प्लॉट करने में मुश्किल होती है. तो आई एम गोइंग टू टेक हियर एज डिफरेंट वैल्यूज एज x, बिकॉज x की वैल्यू निकल रही है तो y पुट कर देते हैं. तो y इक्वल टू पुट कर देते हैं, स्टार्ट कर देती हूँ डायरेक्ट में 200 से. सपोज चलो 200 से करते हैं तो ये 900 आ जाएगा बिकॉज 200 इंटू 2 करेंगे तो 400 और 1300 में से 400 जाएगा, 900 आएगा. सपोज नेक्स्ट वाला लेती हूँ मैं 500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300. अगर एक और ले लेते हैं हम लोग 700 सपोज, तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा. तो क्यों ना हम इसको छोटा करते हैं, छोटा करते हैं मतलब 6 ले लेते हैं, तो 6 12, तो ये 100 हो जाएगा. ठीक है. ये इसलिए नेगेटिव नहीं लिया बिकॉज प्लॉट करने में फिर कहीं ना कहीं मुश्किल होती है, इसलिए मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस सम में 2 नेगेटिव वैल्यूज हमको छोड़नी पड़ी, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ. अब इनको मैं प्लॉट करके दिखाती हूँ. लेट मी सी, बिकॉज दोनों ही इक्वेशन सेम है तो बार बार उनको प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से. यही वैल्यूज को हम उसमें भी प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट द सेम थिंग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट ऑल दीज वैल्यूज इन द ग्राफ पेपर. नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वी आर गोइंग टू जस्ट प्लॉट ऑल दीज वैल्यूज विद द स्केल एज 1 यूनिट इक्वल टू 100 रुपीज. सो आई हैव रिटन हियर दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये अपने पास पॉजिटिव होगा, ये x नेगेटिव, हियर y नेगेटिव एंड दिस इज y पॉजिटिव. So I have already marked all the points as 100, 200 till 1200 here as well as here. So the values of these equations of the question number 2, for x equal to 900, y was 200. X is equals to 900, y equal to 200. So we have to write 900 and 200 as the coordinate of this point. Second was x equal to 300, that time y was 500. So here it is x equal to 300 and y is 500. ये आप कोऑर्डिनेट हमेशा लिखिए पॉइंट को मार्क करके. थर्ड वाला x equal to 100, that time y equal to 600. x equal to 100, y equal to 600. 100 and 600 ऐसे लिखा. अब आपको ये 3 पॉइंट्स मिल गए. अब आप इन तीनों को ज्वाइन करके
इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे लिख दीजिए। तो जैसे आपने इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में रखा स्केल से देखा, तो ये तीनों को आपको ऐसे ज्वाइन करके बताना है। एंड द सेम लाइन रिप्रेजेंट फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, तो उसमें भी यही मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोइंसिडेंट लाइन के लिए है, बिकॉज आपके पास दोनों ही इक्वेशन सेम आई थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब दोनों ही इक्वेशन को इसी लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेम रिप्रेजेंटेशन, सेम लाइन आ रही है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो हम यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। इसका मतलब मेनी सॉल्यूशंस, मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, आप इसको ऐसे भी लिख के बता सकते हैं। इसमें एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कोइंसिडेंट लाइन और मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन लिख के इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। याद रहे एरो हेड्स डालना है। यू शुड राइट द इक्वेशन लाइक x प्लस 2y इक्वल टू 1300 in any one of the corners. Similarly, the last question of this exercise 3.1, here it is, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situations algebraically and geometrically. So once again we need to make two equations and then we plot the equations in the graph paper. So let me write what is price of apple and grapes. So we have to write here third question. Let cost of 1 kg apples is equals to rupees X and cost of 1 kg grapes is equals to rupees Y. Then according to question, 2 kg of apples was there, so 2x plus 1 kg grapes means y, and the total price was 160 according to the first question. Also the second is cost of 4 kg apples means 4x and 2 kg grapes means 2y is equals to rupees 300. Now we have two different equations and we are going to plot these two equations in graph paper. So in the second equation, can we reduce the second equation after taking 2 common from both the side? So let this equation be first and I am going to reduce by taking 2 as common. So it should be 2x plus y is equals to 300, means 2x plus y is equals to 150, क्योंकि आप कैंसिल करोगे तो आपको 150 मिल जाएगा। अब आप ये चेक कर लीजिए, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट्स इक्वल आते हैं, मतलब a1 a2 सेम, b1 b2 सेम, बट c1 और c2 डिफरेंट है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा दैट वन कंडीशन इज एप्लीकेबल हियर। विच कंडीशन? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आप सबको पता है for c1 not equal to c1 upon c2 means the two lines are parallel. They are not going to intersect anywhere. They are not overlapped with each other because this is only the condition for parallel lines. तो यहीं से देख के हमें समझ आ जाता है। और अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप x इक्वल टू 1 2 3 4 ना लेकर के 10 का मल्टीपल ले लीजिए या 20 का मल्टीपल ले लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन 2x plus y equal to 160. So y is equals to 160 minus 2x. ये बहुत छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ पे एक ब्लॉक बना लीजिए, कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए और एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट वुड बी देयर। राइट x एंड y हियर। सपोज आपने x इज इक्वल्स टू 20 पुट किया तो 20 2 ज़ा 40 एंड 160 में से 40 किया तो 120। सिमिलरली अगर आपने x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 50 डाल दिया तो आपके पास ये 60 होगा। देन अगर आपने यहाँ पे 100 डाल दिया, 100 इंटू 200, तो वो नेगेटिव हो रहा है, तो इसको अपन छोटा कर देते, 40 कर दें। अगर आपने चलिए 70 कर लेते हैं,
x इक्वल टू 70, सो इट शुड बी 20. ये 3 वैल्यूज मिल गए फॉर फर्स्ट के लिए. नाउ सिमिलरली फॉर सेकेंड वॉज 2x plus y equal to 150, hence y equal to 150 minus 2x. Again you need to find out 3 different values for x and y. अभी आपने अगर x की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट की तो 20 2 ज़ा 40, और अगर आपने इसको माइनस किया तो 110 आ जाएगा. फिर आपने x इज इक्वल टू सपोज 40 पुट कर दिया तो 40 2 ज़ा 80, तो ये 70 होगा. और अगर आपने यहाँ पे 50 पुट किया तो ये भी आपको 50 मिल जाएगा, क्योंकि 50 2 ज़ा 100 और 150 में से 100 गया तो 50 आ गया आपके पास. अब ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. देखिए इसके लिए भी ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा, और हम लोगों ने 10 का मल्टीपल यहाँ पे दोनों साइड में मार्क किया, और स्केल लिखा 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज. अब फर्स्ट वाले इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो प्लॉट करते. तो फर्स्ट वाला x y इक्वल टू 160 माइनस 2x वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 20, y इक्वल टू 120. तो दिस इज x 20, दैट टाइम y इज इक्वल टू 120. तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कोऑर्डिनेट 20 एंड 120. ठीक है. सेकेंड वाली वैल्यू में x इक्वल टू 50, दैट टाइम y इज 60. तो y इक्वल टू 60 मीन्स आपको ये पॉइंट मिलेगा. x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 60. तो आपने ये कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ लिख लिए. और थर्ड वाला x इक्वल टू 70, दैट टाइम y इज 20. तो 70 एंड 20 ये आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे, और ये तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे. इसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन के भी पॉइंट्स को प्लॉट करके आपको ज्वाइन करना है. ये आपने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आपको ये वाली एक लाइन मिल गई, और ये लाइन किस इक्वेशन के लिए थी उसके लिए भी आपको किसी एक एंड पे लिखना है. तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके पास थी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150. ये आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है. सेकेंड वाले पॉइंट्स आपको जो प्लॉट करने दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स आपके पास थे x इक्वल टू 20, व्हेन x इज इक्वल टू 20 दैट टाइम y इज इक्वल टू 110. तो आपने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा, उसके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए आपने. साथ में मैं इसको ग्रीन पेन से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ डिफरेंट पॉइंट्स. सेकेंड पॉइंट में x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 70. उस टाइम पे आपको ये मिलेगा 40 एंड 70. देन थर्ड पॉइंट x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 50. तो आपके पास x इक्वल टू 50 एंड y ऑल्सो इक्वल टू 50. तो ये आपने प्लॉट करके कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए. नाउ यू हैव टू जॉइन ऑल द 3 पॉइंट्स. अब देखते हैं ये पॉइंट आपको कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, कहाँ जाके जॉइन होते हैं या लाइन पैरेलल आती है. फर्स्ट x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 110, ये वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिखे. बाय मिस्टेक आई मार्क्ड हियर, बट एक्चुअली इट इज दिस इज द पॉइंट. ओके, नाउ यू जॉइन दीज 3 पॉइंट. ये जो आपको 3 ग्रीन कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, अब इसको ज्वाइन करते हैं और ये देखते हैं कि किस टाइप के इक्वेशन हमें या किस टाइप की लाइन हमें मिलती है. तो ये तीनों को ज्वाइन करेंगे और आप देखिए कि ये आपको एक लाइन पैरेलल मिली. आपने दोनों तरफ एरो हेड डाल दिया और ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल मिल गई. तो सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी आपको साइड में लिखना पड़ेगा, जिसका नाम होगा यानी इक्वेशन होगी सेकेंड इक्वेशन एज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 150 था, ये 160 है. इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 160 था. ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, नीचे ग्रीन वाली इक्वेशन है. नाउ सी these two lines are parallel. तो इन दोनों इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, लाइन्स आर पैरेलल. सो वी हैव टू राइट हियर लाइन्स आर पैरेलल. ओके, जब लाइन्स पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन. तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन और वी कैन से सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता बिकॉज ये दोनों लाइन्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती है. दीज लाइन्स आर पैरेलल. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द last question of exercise number 3.1.